Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 17 for business organization and here we will discuss forms of organization in public enterprises. The topics to be covered are introduction, departmental organization, public corporation, government company, comparison of the forms of organization. Now first is introduction. In the case of public enterprises, there are three forms of organization: departmental organization, public corporation or statutory corporation, and government company. We will discuss them one by one. First is departmental organization. Departmental form of organization is the oldest form of organizing public enterprises. Under this form of organization, business activities of the undertakings are conducted under the overall control of one of the departments of the government. डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस की. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, कोई भी अंडरटेकिंग्स, वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है. Departmental form of organization generally is suitable under the following situations: where the basic purpose of an enterprise is to procure revenue for the government. So जो departmental form of organization होता है वो particular situations में ही suitable होता है, जिसमें से पहली situation है जैसे कि जहाँ पे मेन पर्पस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का या एंटरप्राइज का वो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना. ऐसा होता है इन केस ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ or broadcasting etc. Then where the government desires to have firm control over service sectors keeping in view public interest, जहाँ पे गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि जितनी भी सर्विस सेक्टर है वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक के हित में ही काम करें, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग. Then where maintenance of secrecy is regarded as a matter of strategic importance, जहाँ पे secrecy बहुत ज़रूरी होती है, confidentiality ज़रूरी होती है, यानी कि हम सारी इंफॉर्मेशन जब पब्लिक से शेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए, वो भी डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लिए जाते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज. And where projects are at earlier stage of initial planning and require constant efforts and continuous funds that can be provided only by the government. जहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और फंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है. सो ये चारों सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करते हैं. Then the features of departmental organization. The main features of departmental form of organization are as follows. First is overall control rest with the minister. जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए उसके फाइनेंस मैनेज करते हैं और बजट निकालते हैं. तो डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे मैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्टर के पास होती है या फिर उसके अंडर जो भी मिनिस्ट्री है या जो मिनिस्ट्री वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो सारा मिनिस्टर उसका करता धरता होता है. देन सेकेंड फीचर इज एम्प्लॉयज आर दी सिविल सर्वेंट्स. जो एम्प्लॉयज होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के केस में वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन like UPSC is responsible for the recruitment of gazetted personnel in railways and postal services. Then third is financed through budget appropriations. The finances of a departmental form of organization are not independent of the government. They are financed out of the government treasury through the annual budget appropriations and its revenues are paid into the treasury. सो जो फाइनेंसेस होती है इन डिपार्टमेंट्स के, जो भी डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस पे रिलाई करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे उनको फाइनेंस कर रही है एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन की वजह से, और जो भी उनके थ्रू रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी पे जाता है. जैसे कि रेलवेज और पोस्टल बजट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट बजट का ही एक पार्ट होता है. देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स.
Now, this form of organization is subject to budget, accounting, and audit controls. For this purpose, the undertaking is treated on par with other government organizations. ये जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है ये बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल पे बेस्ड होता है और इस पर्पस के लिए जो अंडरटेकिंग्स है उन्हें दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही ट्रीट किया जाता है. देन सोवरेन इम्यूनिटी. Being an integral part of the government, it enjoys the sovereign immunity of the state. Therefore, it can be sued without the consent of the government. So, इसमें सोवरेन इम्यूनिटी भी होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर भी स्यू कर सकते हैं. देन मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ here are the merits of departmental organization. First is maximum degree of government control. So इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम डिग्री होती है गवर्नमेंट कंट्रोल की. सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही इसके सोशल ऑब्लिगेशंस को इफेक्टिवली काम चलाती है. देन लिमिटेड स्कोप टू मिसयूज पब्लिक फंड्स. इस जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है इसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है कि पब्लिक फंड्स को गलत तरीके से यूज किया जाएगा. Then governmental control over economic activities. It provides an opportunity for the government to secure absolute control of economic activities. ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल सिक्योर कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे. गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकती है ताकि सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी को ढंग से चला सके. देन मल्टीप्लाइज इकोनॉमिक प्रोग्रेस. The surplus coming from departmental undertakings increase the revenue of the government. Thus, this surplus can be utilized for the economic progress of the nation and the welfare of the masses. So, जो surplus आता है departmental अंडरटेकिंग्स में उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है और इस सरप्लस को इकोनॉमिक प्रोग्रेस में यूटिलाइज कर सकते हैं. देन responsible to parliament. A departmental enterprise is responsible to parliament even for its day to day operations. जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज टू क्लेम certain privileges from parliamentary scrutiny. For example, if members of parliament ask questions regarding the appointment or dismissal or promotion of a particular employee or regarding a particular sale or purchase transaction, it is a matter of day-to-day operations. Such a question can be allowed to be asked of a departmental enterprise but not of a statutory corporation or a government company. So, अब इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी क्वेश्चंस इससे रख सकता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट या उसके डिसमिस करने के बारे में या फिर उसके प्रमोशन को लेके. लेकिन ऐसा स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट का कोई स्टेक नहीं होता, ना ही वो उन पे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है. Next are the limitations of departmental organization. Now, departmental form of organization suffer from some of the limitations like bureaucracy and red tapeism. Now, you know that the staff of these departmental undertakings are the civil servants. So, it is too close to the bureaucratic system of the government where much importance is attached to rules, regulations and precedents for every decision. Therefore, scope for initiative is limited. क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो यहाँ पे इनिशिएटिव का स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड होता है और जो सुपीरियरिटी है या रूल्स रेगुलेशंस उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड नॉर्मली जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और क्विकनेस की ज़रूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग में, जो कि डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता. देन इट सफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये जो अंडरटेकिंग्स होती हैं ये जनरली पॉलिटिकल पार्टी की पावर की वजह से सफर करती हैं. The fate of departmental undertakings also depends on the balance of power between the ruling party and the opposition. Then, excessive parliamentary control.
नाउ यहाँ पे अभी हमने पढ़ा जैसे कि पार्लियामेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि क्योंकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इस पे बहुत ज़्यादा होता है। पार्लियामेंट इसके डे टू डे क्वेश्चंस को, डे टू डे ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट फिर ये आता है कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव का कम स्कोप रह जाता है। देन लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ये अंडरटेकिंग्स जो होती हैं सिविल सर्वेंट्स मैनेज करते हैं, जो कि बिजनेस एक्यूमेन में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, उन्हें बिजनेस की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। ये सिर्फ सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, सो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बहुत कम होती है। देन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होती है वो सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए चलाई जाती हैं, उनका मेन मकसद होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना। इसीलिए जो कमर्शियल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं सक्सेस के लिए, वो यहाँ पे नेग्लेक्टेड होते हैं, और कंपटीशन एब्सेंट होने की वजह से प्रॉफिट भी नहीं होता इनको, और एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर पाते हैं। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, now you know that these undertakings are financed through annual budget appropriations made by the legislature, and its revenues are paid into the treasury. They are not allowed to raise finances on their own and depend completely on the government. So ये भी इसकी एक limitation है, क्योंकि इसमें financial constraints है। जितनी भी undertakings होती हैं इस टाइप की, वो annual budget appropriation की वजह से ही finance होती हैं, जो कि लेजिस्लेचर या फिर उसके रेवेन्यूज जो भी पे हो रहे हैं ट्रेजरी में, उसके बेसिस पे की जाती है। तो इसलिए ये खुद के फाइनेंसेस अपने आप रेज नहीं कर सकती और कंप्लीटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में बी बाय अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइंस इट्स पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस, immunities and the pattern of management. So public corporation जो होती है वो एक corporate body होती है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की वजह से क्रिएट की जाती है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, जो उसकी पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस: टू ट्रांसफर द बिजनेस ऑफ अ नेशनलाइज्ड अंडरटेकिंग to the corporation, to facilitate the acquisition of undertakings belonging to an existing company, to promote, develop and operate certain schemes, to extend certain social services and utility services. So public corporation जो है कुछ different purposes के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर एक बिजनेस को नेशनलाइज्ड अंडरटेकिंग के अंडर ट्रांसफर करना है तो, या फिर एक अंडरटेकिंग को एक्वायर करना है जो एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कंपनी को बिलोंग करती है, या फिर एक सर्टेन स्कीम के अंडर किसी अंडरटेकिंग को प्रमोट या डेवलप या ऑपरेट करना है, और टू एक्सटेंड सर्टेन सोशल सर्विसेज, कुछ सोशल सर्विसेज को अगर एक्सटेंड करना है और पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ काम करना है तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन का फर्स्ट फीचर है दे आर क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो स्पेशल एक्ट की वजह से क्रिएट की जाती है। द एक्ट डिफाइंस द पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, रिलेशनशिप to the government department, etc. Then it is a corporate body. A corporation, like a joint stock company, is a legal entity. It means that a corporation is an artificial person which exists in the eyes of law. Like a living being, it can enter into contract and can transact any business under its own name. Since it does not have physical existence, it operates through its agents, which is its board of directors. So जो कॉर्पोरेट पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, यानी कि एक कॉर्पोरेशन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में एंटिटी की तरह काम करती है, मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है इन द आईज ऑफ लॉ। एक लिविंग बीइंग की तरह वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, एक बिजनेस के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो खुद से नहीं करते क्योंकि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो वो अपने एजेंट्स के थ्रू करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। So it is a corporate body. Then it is owned by the state government. It is managed by the board of directors, which are its agents. Then it is answerable to legislature. कॉर्पोरेट जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को
आंसरेबल होती है जिसने उसे क्रिएट किया है। जैसे कि अभी हमने डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, उन्हें भी लेजिस्लेचर को आंसर करना पड़ता है अपने ऑपरेशंस के लिए। सो द वे द कॉर्पोरेशन वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इज मेंशन्ड इन द एक्ट। पार्लियामेंट इज नॉट expected to interfere in its day-to-day operations, but it can discuss matters of policy and the overall performance of the corporation. लेकिन जैसे अभी हमने डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि पार्लियामेंट उसके डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है, वैसा पब्लिक कॉर्पोरेशन में नहीं होता। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो उसके डे टू डे कॉर्पोरेशन में या डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो पॉलिसी या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको कॉर्पोरेशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देन रिलेशन विद द गवर्नमेंट। इवन दो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट डज नॉट ऑपरेट एज अ विंग और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन फिर भी वो एक गवर्नमेंट के पार्ट की तरह ऑपरेट नहीं करते। The legal relationship and channels of communication between the government and the corporation are laid down in the act of its incorporation. Then next is own staffing system. एक कॉरपोरेशन जो होती है वो गवर्नमेंट ही ओन करती है और मैनेज करती है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते। The employees are recruited, remunerated and governed by the rules and regulations laid down by the corporation. जैसे ही कॉरपोरेशन ने रूल्स रेगुलेशंस ले डाउन किए हैं, उसी हिसाब से उसके एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है और रेम्यूनरेट किया जाता है। Their pay and benefits are also different from the government servants. Then financial independence. The major source of autonomy of a statutory corporation is its independence in respect of its finances. जो ऑटोनॉमी का यहाँ पे मेजर सोर्स है वो है उसकी इंडिपेंडेंस, कि वो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी रिलाई नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं होते। अनलाइक डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a public corporation is not subject to the budget, accounting and audit controls. नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो एक तरह से डिपार्टमेंटल रन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में मिडवे होता है। इट एब्जॉर्ब सम ऑफ द salient desirable features of both of them to fetch the best of both of them. So जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है उसके जो मेन फीचर्स हैं या फिर एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग की और प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेट बॉडीज दोनों की अगर हम एडवांटेजेस को मिक्स कर दें तो वो सारे इसके मेरिट्स होते हैं। जैसे कि इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी है जो एक पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट के अंडर सेट है। सो वो सारे अपने अफेयर्स जो है इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं और इसलिए इनिशिएटिव लेने में भी काफी आगे होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। It avoids red tapeism. The evils of red tapeism and bureaucracy associated with departmental form of organization are avoided in public corporation. Then easy to raise capital. क्योंकि ये गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करते कैपिटल को लेके, तो यहाँ पे कैपिटल रेज करना इजी होता है, लेकिन ये होते गवर्नमेंट ओन्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है वो इजीली रेज कर सकते हैं फ्लोटिंग बॉन्ड्स के थ्रू। देन प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक की वजह से ही चल रही है और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इनको हम डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो और पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होती है वो रिलेटिवली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं और ना ही इसमें पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इतनी होती है और डिपार्टमेंटल चेक्स एंड कंट्रोल्स भी बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, एंड इसीलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन वर्क्स विद सर्विस मोटिव। Public corporation avoids the defects of profiteering, exploitation, illegitimate speculation, etc., which are often associated with private enterprises. एक पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होता है वो प्राइमरली सर्विस मोटिव के लिए ही वर्क करता है और प्रॉफिट अर्निंग उसका सेकेंडरी मोटिव होता है। इसीलिए ये जो होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन ये भी सर्विस मोटिव के लिए ही वर्क करते हैं ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। देन सिक्योर्स वर्किंग एफिशिएंसी। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है ये वर्क
वर्किंग एफिशिएंसी को सिक्योर करती है, क्योंकि यहाँ पे काम करने का जो तरीका होता है और जो एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी अच्छे और एफिशिएंटली काम करते हैं और लेबर प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होती हैं. देन सिक्योर्स बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमीज. यहाँ पे इकोनॉमीज जो होती है वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस की होती है और इसीलिए साइज भी इनका बड़ा होता है और बिजनेस स्केल भी ज्यादा होता है. फर्दर इट इज इजी टू रीप कंसिडरेबल इकोनॉमीज इन मैनेजमेंट बाय अफेक्टिंग द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल कंपनीज अंडर दिस फॉर्म. For example, giant government undertakings organized as autonomous units such as banking, insurance, transport, etc. can secure better management and staff with comparatively lesser cost. Then next is limitation of public corporation. पब्लिक कॉरपोरेशन में लिमिटेशंस भी बहुत होती हैं, जैसे कि लेस ऑटोनॉमी. अगर हम डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इसे कंपेयर करें तो पब्लिक कॉरपोरेशन में ऑटोनॉमी ज्यादा होती है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ऑटोनॉमी जो होती है पब्लिक कॉरपोरेशन की वो क्लोजली और सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है और इसीलिए इसमें फ्रीडम थोड़ी कम हो जाती है. देन इनफ्लेक्सिबिलिटी. पब्लिक कॉरपोरेशन जो है स्पेशल एक्ट से सेटअप होती है लेजिस्लेचर के और इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह पॉसिबल इतने इजीली नहीं होते. इसलिए ये कॉरपोरेशन इनफ्लेक्सिबल हो जाती है उस वजह से. देन क्लैश अमंग्स डाइवर्जेंट इंटरेस्ट. कॉरपोरेशंस जो होती है वो गवर्नमेंट ओन करती है और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं जो गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किए होते हैं. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट में क्लैशेस आ जाते हैं. देन इग्नोर्स कमर्शियल प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पे भी प्रॉफिट जो है सेकेंडरी मोटिव होता है और इसीलिए कमर्शियल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं. एक्सेसिव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत एक्सेस होती है, प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं होता और इस वजह से कंपटीशन में नहीं रह पाते हैं. देन गवर्नमेंट कंपनी. अकॉर्डिंग टू द इंडियन Companies Act, a government company is a company in which 51% or more of the total paid up capital is held by the central government or any state government or by any state government or partly central government and partly by one or more state governments. इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें 51% जो शेयर होता है या टोटल पेड अप कैपिटल जो होता है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली उनके पास. एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच अ कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी. कोई भी कंपनी अगर ऐसी कंपनी का सब्सिडरी है तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करते हैं. गवर्नमेंट normally establishes the company form of organization for the following reasons: public interest, mixed ownership, industrial promotion, promotion of trade or commerce, and lack of incentives. Now the features of गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर क्रिएट की गई है. ये भी कॉर्पोरेट बॉडी होती है जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है. स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल. क्योंकि इसमें 51% जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं लेकिन बाकी के 49% प्राइवेट कंपनीज के होते हैं तो इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन का स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है. इट इज़ ऑल्सो मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इंजॉयज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. क्योंकि इसमें 49% जो स्टेक है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है तो इसलिए इसमें फाइनेंस को लेके इंडिपेंडेंस होती है. इंडिपेंडेंट स्टाफिंग. ये अपने आप ही एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं. दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स. देन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम. इन कंपनीज का अपना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम होता है. ये लोग गवर्नमेंट को अकाउंट नहीं देते. एंड एनुअल रिपोर्ट्स. जो इनकी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स होते हैं या फिर ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करनी होती है. Now the distinction between government and non-government companies. Now there are some of the differences between a government company and other joint stock companies called non-government companies. Like first is paid up capital. गवर्नमेंट कंपनी में अगर हम देखें तो 51% से कम कभी भी पेड अप कैपिटल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होता.
उनके पास एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर जॉइंटली दोनों के पास। लेकिन जो टोटल पेड अप कैपिटल होता है वो एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो ओन करती है वो 51% या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं होता, उनमें मेजर शेयर जो होता है पेड अप कैपिटल का वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। देन ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर जो होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से एडवाइस लेके, दैट इज कैग से एडवाइस लेके गवर्नमेंट कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट होता है। समटाइम्स कैग हिमसेल्फ कैरीज आउट द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में जो ऑडिटर होता है वो कंपनी की जनरल बॉडी ही अपॉइंट करती है। देन दी एनुअल रिपोर्ट्स, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं प्लस ऑडिट रिपोर्ट्स गवर्नमेंट कंपनीज की, वो पार्लियामेंट को प्रेजेंट करनी होती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करते हैं अगर वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ जनरल बॉडी के पास जाती हैं। देन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कंपनीज एक्ट को एग्जेम्प्ट कर दे, उसके किसी भी प्रोविजन को एक गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई करके, एक्सेप्ट ऑडिट को लेके कोई वो प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी वो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस चेंज नहीं कर सकते जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। देन मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अब इसके कुछ मेरिट्स भी हैं जैसे कि इजी टू फॉर्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इजीली बन सकते हैं। इजी टू ब्रिंग चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लिए प्रोविजंस बनाना काफी इजी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट फैसिलिटेट्स टेकिंग ओवर अ रनिंग एंटरप्राइज, इसमें हम एक रनिंग एंटरप्राइज को भी टेक ओवर कर सकते हैं इजीली। फैसिलिटेट्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसमें ज्यादातर 49% मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49% के जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट ओनर्स के पास होते हैं, तो इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। देन इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, हियर वी कैन इजीली ट्रांसफर द ओनरशिप टू अदर ओनर और अदर कंपनी। नाउ हियर वी हैव मोर ऑटोनॉमी, यहाँ पे ज्यादातर एडवांटेजेस जो अवेलेबल होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी भी इसकी हैं। यहाँ पे अपना चार्टर होता है, ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस होती है, किसी और को हमें अपने ऑपरेशंस के लिए क्वेश्चन उठाने नहीं दे सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, सो द इविल्स ऑफ रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी associated with the departmental form of organization are avoided. Next is the limitations of government company. Government company evades constitutional responsibility. Government company जो होती है उसको हम एक specific approval के बगैर भी create कर सकते हैं, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। पार्लियामेंट कभी भी रीजंस डिस्कस नहीं करते कि क्यों उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी सेट करी, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इवेड करते हैं। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि सोल शेयर होल्डर जो होते हैं ज्यादातर केसेस में वो गवर्नमेंट होती है, तो वो मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी रिवाइज कर सकते हैं जहां पे भी जरूरी होती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड विदाउट एनी पब्लिक डिस्कशन। देन फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, उनके पास वो हमेशा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे मे नॉट टेक द इनिशिएटिव इन ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड एंड इन एंटरिंग इनटू न्यू एरियाज ऑफ एक्टिविटीज। देन पब्लिक क्रिटिसिज्म, जो परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट कंपनी की वो एनुअल रिपोर्ट्स में शो करते हैं मिनिस्ट्री कंसर्न को, और ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिखाई जाती हैं, एंड एज सच दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एक्सपोजिंग द एंटरप्राइज टू द ग्लेयर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म। देन लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के वो मोस्टली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, सो ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये इनमें कभी भी बिजनेस एफिशिएंसी नहीं आ पाती है, क्योंकि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एफिशिएंसी होती है बिजनेस को लेके, वहाँ इन कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनीज में वो एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज या फिर नॉलेज नहीं दिखती।
Now these are the comparison of the forms of organization. लाइक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और साथ में एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अटैच्ड होती है. पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होती है वो एक स्पेशल एक्ट की वजह से फॉर्म होती है एंड गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. लीगल स्टेटस अगर देखें तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग से लीगल स्टेटस नहीं होता सेपरेट में. पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं. नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट की एक कंसर्न मिनिस्ट्री मैनेज करती है. पब्लिक कॉर्पोरेशन को और गवर्नमेंट कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. देन कैपिटल. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बजटरी अप्रोप्रिएशन के थ्रू. और पब्लिक कॉर्पोरेशन में fully subscribed, it is fully subscribed by the government, and in government company minimum of 50% of the capital is paid by the government. Then scope of private participation. There is no scope of private participation in departmental organization and public corporation. गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन का स्कोप रहता है. देन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. लीस्ट और नो ऑटोनॉमी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं होती. पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऑटोनॉमस बॉडी की तरह वो वर्क करती है एक्ट के प्रोविजंस के अंदर अंदर. और गवर्नमेंटल कंपनी जो होती है अपने कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे ही चलती है. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो उसके अंदर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में. और पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कम होता है. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को ही अकाउंटेबल होता है. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट company is accountable to government and the concerned ministry which is accountable to the public. Now operating finance and borrowing powers. Departmental organization में budgetary allocation होती है सिर्फ. पब्लिक कॉर्पोरेशन में अपनी खुद की अरेंजमेंट्स होती हैं और बोरोइंग पावर्स भी इंजॉय करते हैं वो. लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में वो अपनी खुद की अरेंजमेंट्स करते हैं और बोरोइंग पावर भी इंजॉय करते हैं. देन स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज जो है सिविल सर्विसेज से आते हैं और सिविल सर्वेंट्स होते हैं. पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बेसिस पे गवर्न किए जाते हैं. एंड गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट्स नहीं होते एंड सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बेसिस पे गवर्न किए जाते हैं. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट इज व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. एंड सेकंड क्वेश्चन इज compare a company form of organization with a statutory corporation. Which of the two would you recommend for managing public enterprises and why? That's all for this session. Thank you and have a nice day.